Hello everyone, I welcome you all to Manu Law Classes Current Affair Analysis. In this video, we will discuss August 25, The Hindu Delhi edition newspaper. So our very first news is about the Chandrayaan rover as it has begun its mobility operations, and here hours after the Pragyan lunar rover rolled out of the Vikram lander, it took its first walk on the moon as said by ISRO. So we will discuss in detail about this later in the later newspaper, and we will discuss all the nitty-gritties of the Pragyan rover. Then our next very important news is about the BRICS and the new members which has been included in the BRICS. So we will first discuss that, then we will go ahead with the other news. So our very first news about the BRICS member addition, that which member has been elected. So here the South African President Cyril Ramaphosa, who is the current chair of the BRICS, he presented the Johannesburg Declaration, and the outcome document of the summit has made an indirect reference to the Ukraine conflict. Now, in this particular Johannesburg Declaration, it has also been said that there will be an addition of 6 more members. Who are these? Just note down this: Argentina, Egypt, Iran, Saudi Arabia, Ethiopia and UAE. So these will be the new 6 members of the BRICS. Earlier it was BRICS, how many members? Total 5 members. Then now it will comprise of more 6 members, that is Argentina, Egypt, Iran, Saudi Arabia, Ethiopia and UAE. So this thing will come into effect from January 1, 2024. So from that day, they will be effectively a part of BRICS. Right now, it has been said that they will be added into the BRICS as a part of BRICS. Okay, so this is a very important decision which has been taken. Earlier, if we talk about what is BRIC, so earlier it was BRIC, it was formed in the year of 2006. Then in the year of 2010, it became BRICS, or South Africa was added. Now in the year of 2023, 6 other members will also be a part of BRICS. Okay, so this is a very important upcoming. Also, in the main BRICS event, Prime Minister Narendra Modi, he held bilateral meeting with the leaders of the Senegal, Mozambique, Ethiopia and Iran, and he talked about the BRICS Africa outreach and the BRICS Plus dialogue session, where he invited the participant countries to join the bodies such as the International Solar Alliance. You have to comment it out in comment box that where is the headquarter of International Solar Alliance is located and in which COP it was formed. Apart from that, OSOWOG, One Sun, One World, One Grid. This is also, we can say, an initiative of ISA, International Solar Alliance. Then he also talked about Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Again, you have to comment it out in comment box that where is the headquarter located of the CDRI. One Earth, One Health, Big Cat Alliance and the Global Center for Traditional Medicine, which is located in Jamnagar, Gujarat. So he urged all the members to participate in this, and these all important alliances and important bodies are important from your examination point of view. So just read about this thing. Okay. Now there is also a news on the Pragyan rover. So we will first discuss about the important detailings of this Pragyan rover. Here it has been given. So what will this rover do on the moon? First, it will move on the moon surface in a low gravity and thin atmosphere in a semi-autonomous way, avoiding any hazard. Second, the instrument which is there on the Pragyan rover, it will basically study the materials on the lunar surface and the landing site on which it has landed. यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान 3 का लैंडर जो है वो कहाँ पे कौन सी साइट पे डिसेंड किया था. सो इट डिसेंडेड एट अ साइट बिटवीन द क्रेटर Menzinus C and Simplinus N. Okay, so just remember, in between these two craters, the rover and the lander landed, or the lander landed and then the rover came out. The lander has moving
स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका लैंडर के पास है, जो आपका रोवर है वो भी लैंडर के पास है। और यहाँ पे 500 मीटर से दूर भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो आपका रोवर है वो लैंडर के साथ कम्युनिकेशन में है। तो इसीलिए 500 मीटर की दूर भी नहीं जा सकता, जिसके चलते इसका कम्युनिकेशन बरकरार रहेगा। अब प्रज्ञान जो है, it is itself containing a lab. What kind of lab it is? So the first one is the laser induced breakdown spectroscope. It is what? A powerful laser which is shined on a target sample until it blows off a few atoms and causes the sample to emit some radiation. Detector study this radiation to understand what the sample is made up of, and its weight is 1.5 kg and it's consume around 5 watts. So it is a moving lab. Here basically it is introducing a laser radiation, and based on this radiation it is studying the material on the moon surface. Another important thing which is there on the Pragyan rover, it is alpha particle X-ray spectrometer, APXS. यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो टारगेट सैंपल है उसको एक्सरे के थ्रू ब्लास्ट करेगा। जो ये आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, जिसके थ्रू ये आपका क्यूरियम 244 इसमें है, तो उसके थ्रू एक्सरे मटेरियल प्रोड्यूस करेगा और वो ब्लास्ट करेगा सैंपल पे। फिर जो आपके एटम्स के सैंपल हैं, जब ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये अपनी अलग फ्रीक्वेंसी का वेव जो है रीरेडिएट करेंगे। उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे साइंटिस्ट जो है यहाँ पे ये इस सैंपल को किस मटेरियल से बना है इसको स्टडी कर सकते हैं। और इसका वेट जो है वो 0.7 kg है और ये 4 वॉट एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट लैब मटेरियल विच इज देयर ऑन द प्रज्ञान रोवर। द फर्स्ट वन इज लिप्स एंड द सेकेंड वन इज APXS। फुल फॉर्म याद रखिएगा और ये क्या काम करेगा ये भी याद रखिएगा। नाउ इतना शॉर्ट लाइफ स्पैन क्यों है प्रज्ञान रोवर का? Because when the sun sets on the moon, an area become complete dark and very cold. इसके चलते जो आपकी बैटरी है यहाँ पे, जो प्रज्ञान रोवर में है या लैंडर पे है, तो वो आपकी बैटरी जो है वो आपकी डैमेज होने लगती है और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो भी आपके डैमेज हो जाते हैं। और इसके चलते सन जो है आफ्टर 14 डेज राइज होता है, तब आपकी उसके बाद जो रोवर है वो अपने लाइफ में रिटर्न आएगी। So this is unlikely to survive the lunar light, which is low temperature, and it can damage the electronic components. Okay, so this is your Pragyan rover. This is the whole image of the Pragyan rover. Okay, now there is another important news which is regarding the Pragyan rover. So here the Pragyan rover, it is rolling out and it is carrying a camera which has been developed by the Laboratory for Electro-Optics System, which has already made an impact, while another will be guiding the Pragyan as it traverses the lunar surface. So the lander horizontal velocity camera, which is aboard the Vikram, it has clicked various images of the moon and it has already sent us the images of the moon. The LHVC or the Lander Horizontal Velocity Camera, it was initially developed for the Chandrayaan 2 mission, but इसको अडॉप्ट हमने किस में किया? चंद्रयान 3 में किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। LHVC जो है ये आपका बेसिकली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, जब आपका लैंडर डिसेंड कर रहा था तो उस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका मेजर करने के लिए इस LHVC कैमरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और साथ में कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथमिक कैलकुलेशंस भी कैलकुलेट कर रहा है, जिससे आपका लैंडर जो है वो ट्रैवल कर सकता है। तो ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉफ्ट लैंडिंग एज सेड बाय शुभलक्ष्मी कृष्णा मूर्ति, जिन्होंने टीम को लीड किया था LEOS। ओके, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ शुभलक्ष्मी कृष्णा मूर्ति as he led the team of scientists for the LEOS to develop the camera and who has now retired from the ISRO. सेकेंड कैमरा जो आपका यहाँ पे लगा हुआ है वो कौन सा है? नेविगेशनल कैमरा और नेवकैम। It is two of them will be the eyes of the rover, guiding it to traverse the moon surface. मतलब ये जो आपका दो कैमरा लगा है उसमें से एक जो है इसकी आंख, रोवर की आंख की तरह काम करेगा और यहाँ पे ये बताएगा कि आगे क्रेटर है या आगे कोई डिस्टर्बेंस है,
एलिवेशन है, क्या है, उसके बेसिस पे आपका ये काम करेगा और ये गाइड करेगा कि कैसे आगे मूव करना है। जो आपके दोनों नेव कैम्स हैं, दे आर फिटेड इन द फ्रंट ऑफ द रोवर फॉर पाथ प्लानिंग एंड फॉर द ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एंड दे आर सर्विंग एज द आइस। प्रज्ञान रोवर में 2 इंपॉर्टेंट नेविगेशनल कैमरा फिट किए गए हैं इन द फ्रंट ऑफ द रोवर, जिससे वो पूरा नेविगेट कर सकता है और जो लूनार सरफेस है, लूनार टेरेन है, उस पे मूव कर सकता है। एक है आपका नेवकैम लेफ्ट और दूसरा है आपका नेवकैम राइट, और दोनों आपका हेल्प करेंगे कि कैसे प्रज्ञान रोवर को मूव करना है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अनदर इंपॉर्टेंट thing with regard to the Chandrayaan mission or we can say moon mission, अभी हमने रिसेंटली 2 मून मिशन देखे हैं। एक हमने लूना 25 के बारे में बात की, दूसरा हमारा खुद का चंद्रयान 3 था, ठीक है। इसके अलावा 2023 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लूनार मिशन जो है वो आपके सेंड किए जा रहे हैं। 4 और लूनार मिशन अभी आपके लाइंड अप है। इसमें कौन कौन सा है? एक है आपका कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विसेज एंड लूनार ट्रेल ब्लेजर फ्रॉम द यूएस। अब ये जो आपका CLPS है, दैट इज द कमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस, दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ नासा अकॉर्डिंग टू यूएस स्पेस एजेंसी, और यहाँ पे ये बेसिकली आपका रैपिड एक्विजिशन ऑफ द लूनार डिलीवरी सर्विस फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज फॉर पेलोड्स that advanced capability for the science exploration and commercial development of the moon. This is the main aim of the CLPS mission. जो lunar trailblazer है ये भी आपका क्या करेगा? On the other hand it is an orbiter. Okay? moon mission जो आपके चाइना के lunar communication के लिए important है, navigation के लिए important है, that is the satellite constellation and Japan's smart lander for investigating moon. ये भी आपका एक ऑर्बिटर लैंडर मिशन है। तो यहाँ पे आपका these are the important mission which is set to be held। और यहाँ पे साथ में एक और फेलियर देखा था हमने जापान का हकुटो आर लैंडर। दिस वाज फेल्ड मून मिशन एंड इट फेल्ड फॉर द मून लैंडिंग इन अप्रैल, बट इट वाज आल्सो अ मून मिशन। हकुटो आर मिशन completed its task, and if it had been completed its task, so it would have been the world's first commercial soft landing on the lunar surface, but unfortunately it was unable to complete its task. So these are the important mission which is set to be there in the upcoming months, and this was the failed mission of Japan. Apart from that, there are 6 active lunar orbiter, and currently the only operating rover is China's Yutu-2 rover, which is released by Chang'e 4, एंड ये आपका फार साइड जो है वहां पे ऑपरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे 2 और मिशन, बैराशीट 2 इजराइल से और यूएस का वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर और द वाइपर, एंड चाइना का लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम CLEP, चांगे 2 एंड हकुटो 2। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट अपकमिंग मिशन फॉर द मून। सो this was all about the theme moon, and we discussed all the important details related to the moon mission. Okay, now moving back to our news analysis, here we will discuss our next important article, that is about the disengagement at the along the LAC. So we know in the BRICS summit both India and China are face to face, और यहाँ पे इन्होंने बोला है in the sidelines of the BRICS summit, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइनीज प्रेसिडेंट से मीट किए थे और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमें स्पीडी डिसएंगेजमेंट के लिए LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी आपका डिसएंगेजमेंट है उसके स्पीडी डिसएंगेजमेंट के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी राजस्थान से आ रही है, और यहाँ पे राजस्थान विल बी मेड TB फ्री बाय 2025 विद सस्टेन्ड एफर्ट। तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस फ्री, दिस इज द इंडियाज टारगेट एज वेल, और यहाँ पे राजस्थान जो है वो भी आपका TB फ्री बनेगा 2025 तक विद सस्टेन्ड एफर्ट ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर। यहाँ पे आपका एक और स्टेट आ गया है
और ये आपका नेशनल टारगेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये आपको याद रखना है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने बोला कि 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं स्टेट के जिनको ऑलरेडी सिल्वर मेडल मिल चुका है और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करने के लिए अच्छा काम किया था इन द ईयर 2022. So soon Rajasthan will become TB free by 2025. Okay. Moving further toward our next important article that is coming in from the editorial section, and here we have news about the India's G20 opportunity for the African Renaissance. So this news is about, first of all, the Africa, and then it is talking about the problems which Africa is facing and the BRICS relationship with it. सो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो अभी अफ्रीका का जो डिमांड है नाउअडेज फॉर द मल्टीलैटरल फोरा सच एज द ब्रिक्स, द G20, द UN, GA, इन सब में आपका उठाया जा रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था अफ्रीकन यूनियन जो है इसको इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई है G20 में, और यहाँ पे आपका ये जो न्यूज है अगेन इट इज विद रिगार्ड टू दैट। अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ पे आपके 54 कंट्रीज आते हैं दैट कंप्राइजेस क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और यहाँ पे ये आपके ब्रिक्स, G20 जो है ऐसे फोरम्स जो है यहाँ पे बस आपका साउथ अफ्रीका जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और बाकी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे G20 जैसे हैं, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर है, तो यहाँ पे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करने वाला बस और बस एक ही कॉन्टिनेंट, एक ही कंट्री है, दैट इज द साउथ अफ्रीका। अफ्रीका की अगर हम इन जनरल बात करें तो आपका, और खास करके जो साहेल रीजन है उसकी बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि आपका मिस गवर्नेंस, अनप्लान्ड डेवलपमेंट, डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग ट्राइब एंड करप्शन। दीज आर द मेजर प्रॉब्लम इन द साहेल रीजन। रिसेंटली कुछ नए डिसरप्टर्स आए हैं, जैसे कि आपका इस्लामिक टेरर आ गया, इंटर ट्राइबल स्क्रिमेज हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन, उसके चलते फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना, अर्बनाइजेशन और जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सबके चलते जो आपका ट्रेडिशनल सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक है ये धीरे धीरे स्ट्रेन होता जा रहा है। और इसके चलते पास्ट की भी बात करें तो आपका इस रीजन में जो साहेल रीजन है उसमें फ्रांस, यूएस, रशिया का वैगनर ग्रुप, इन सब ने काफी हद तक इंटरवीन किया है। तो इसके चलते यहाँ पे जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, और इसके अलावा आपका इन रीजन में डिक्टेटरशिप बहुत ज्यादा है, और साथ में कूप के इंसिडेंसेस भी बहुत ज्यादा है। तो जो अफ्रीकन नेशनलिस्ट है दे आर बेसिकली टेकिंग प्राइड अंटिल रिसेंटली इन द कॉन्टिनेंट हैविंग सीन द लास्ट ऑफ द जनरल पावर, लेकिन फिर से अभी हमने कूप देखा है कहाँ पे, इजिप्ट पे देखा था, बर्किना फासो में देखा था, नाइजर में रिसेंट आपका कूप हुआ है, माली में भी कूप हुआ है। तो ये सारे आपके जो रीजन्स हैं इसमें फिर से ये कूप का इंसिडेंस या डिक्टेटरशिप का इंसिडेंस वापस से आ रहा है। तो इस सब के चलते बेसिकली आपका रीजन क्या है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बहुत कॉम्प्लेक्स है, और नेशनल का सिचुएशन भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब इसके लिए इकोवास इज वर्किंग अ लॉट, बट टिल नाउ देयर इज नो सच ग्रेट अचीवमेंट। इकोवास इज वर्किंग अ लॉट। आपको इकोवास के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मैंने ये ऑलरेडी पिछले डीएनए में कवर किया है, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू एमर्जिंग बॉडी। न्यू तो नहीं है बट एमर्जिंग बॉडी, बहुत बार न्यूज में आ चुका है, तो इसीलिए इकोवास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इंटरनेशनल जितना भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दे आर लुकिंग टुवर्ड अफ्रीका प्रॉब्लम, और इंटरनेशनल सपोर्ट बेस का भी यहाँ पे इरोजन हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना के एग्जाम्पल की, तो चाइना जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, इन्वेस्टर था, लेकिन क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्लो हो रही है या ट्रेड उतना बढ़ नहीं रहा है उसके चलते, और साथ में BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये जो चाइना का प्रोजेक्ट है जो इन्होंने अफ्रीका में रोड्स बनाए हैं उसके ऊपर, अब क्योंकि ये रीपे नहीं कर सकता है, अफ्रीका की इकोनॉमी खुद से ही बहुत खराब कंडीशन में है तो ये रीपे नहीं कर सकते हैं, सो कुछ पार्ट अफ्रीका का चाइना के सुवरेनिटी में आ गया है, मतलब चाइना को सीड करना पड़ा है कुछ असेट्स जो अफ्रीका के हैं।
इसके अलावा वेगनर ग्रुप की बात करें तो अभी हमने देखा वेगनर ग्रुप के चीफ ही इज डेड, इट हैज बीन कंफर्म। तो यहाँ पे ये जो आपका वेगनर ग्रुप है इसका भी रोल बहुत ज्यादा था। अब क्योंकि वेगनर ग्रुप के चीफ ही इज डेड, सो अब यहाँ पे इनका सिचुएशन भी थोड़ा अनक्लियर है। और रशिया जो कि आपका विच इज अंडर द वेस्टर्न इकोनॉमिक सेक्शन, दे हैज होस्टेड एन अफ्रीकन समिट इन जुलाई। इसके चलते इनका पार्टिसिपेशन देखा गया। फ्रांस, यूके और जितने भी कॉलोनियल पावर हैं, they wanted to participate in Africa not because of Africa interest but because they want to exploit the mineral wealth which is there in the Africa। तो इसके चलते अफ्रीका जो है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही हैं, डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, और इन सब के चलते अफ्रीका इज नाउ आस्किंग अदर ग्रुप्स फॉर हैविंग मोर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। 15th ब्रिक्स समिट की अगर हम बात करें तो थीम क्या है इसका, ब्रिक्स एंड अफ्रीका। और यहाँ पे ये बेसिकली आपका इट विल बी फॉलोड अप अर्ली इन द सितंबर इन द 18th G20 समिट होस्टेड बाय इंडिया, जहां पे बहुत सारे इश्यूज जो आपके ग्लोबल साउथ के थे, स्पेसिफिकली अफ्रीका के थे, उन पे फोकस किया गया है। और जो एनुअल सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसने अगेन जो ब्लैक कॉन्टिनेंट का प्रॉब्लम है इसको वर्ल्ड के नजर में रखा है और यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया है। अब इंडिया का क्या सपोर्ट रहा है, इंडिया का क्या टाई रहा है, तो इंडिया का टाई अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादा डीप है। हमारी हिस्ट्री भी अफ्रीका के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पहले अफ्रीका में थे, तो यहाँ पे उन्होंने उनका जो सत्याग्रह था वो सबसे पहले इन्होंने ही लॉन्च किया था वहां पे। तो यहाँ पे इन्होंने अपार्थेड के अगेंस्ट ये सत्याग्रह किया था टू द यूएन पीस कीपिंग रोल। ये सब आपका बेसिकली एक लीगेसी में हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्टलेस फ्रॉम द अफ्रीका एंड सेल फ्यूअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इंडिया और अफ्रीका का ट्रेड जो है $98 बिलियन हो गया है। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट इन द अदर सोशियो इकोनॉमिक एंगेजमेंट, it remained robust, especially in the sectors such as education, healthcare, telecom, IT, and appropriate technology, and also agriculture. India is the fifth largest investor in Africa and it has extended its investment over $12.37 billion in a concessional loans. Okay? साथ में यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। सो वी आर वर्किंग फॉर अफ्रीका's welfare, but yes, the whole world should also look at the problems which the Africa is facing right now. So this was the whole crux of this article. मूविंग फर्दर टूवर्ड द नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे बस कुछ खास है नहीं दिया हुआ, इतना आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका एक सिनारियो दिखाया हुआ है मेडिकल कॉलेजेस का और मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, कि वहां पे एक पेशेंट का यहाँ पे रिपोर्ट दिया हुआ है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और 1 साल बाद उसको पता चला कि उसके पेट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट छूटा हुआ है। तो इसके चलते, और ये इंसिडेंस कहाँ का है, केरला का इंसिडेंस है। सो केरला इज वन ऑफ द स्टेट जहाँ का मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छा है और यहाँ पे नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज या वैकेंसी जो है बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी या मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्सेज में बहुत अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पे इसके चलते साथ में एक और पॉलिसी आई है कि हर एक स्टेट में एम्स खोलना है, जिससे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो पेशेंट का केयर भी कर सके और साथ में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका नंबर भी बढ़ सके। तो मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जो सबसे पहले तो आपका एक एजुकेशनल पर्पस की तरह सॉल्व रोल प्ले करता है, मतलब यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल की डिग्री लेते हैं। और दूसरा ये क्या करता है, ये आपका साथ में मेडिकल कॉलेज जो होता है ये हॉस्पिटल की तरह भी काम करता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी देखा जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, उनको प्रोफेशनल अप्रेंटिसशिप भी दिया जाता है और साथ में यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनको मेडिकल केयर भी लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसके चलते मेडिकल कॉलेजेस जो है वो डुअल रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे इन डुअल रोल परफॉर्म करने के लिए भी जो आपके मेडिकल कॉलेज हैं दे शुड बी अबाइडिंग few norms and they should maintain their standards because these kind of scenarios or these kind of cases are not tolerable, as we need more, we need to develop a guideline which is more comprehensive toward patient centric or patient friendly.
और टर्शियर केयर नीड जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इवन आफ्टर कोविड 19 के बाद तो और ज्यादा बढ़ गई है टर्शियरी केयर। तो इसीलिए यहाँ पे देयर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन दीज इंस्टीट्यूशन एंड मेक देम पॉपुलर एंड ऑल्सो पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस वॉज अबाउट दिस होल आर्टिकल। Then comes this article, should the CJI be part of the committee selecting the chief election commissioner? तो यहाँ पे ये न्यूज भी आपका ट्रांजिशन में रहा है, बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया है। यहाँ पे हमें पता है कि एक बिल लाया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ पे इसमें प्रपोज किया गया है कि जो आपके इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए जो बॉडी होगी उसमें आपके क्या होंगे, उसमें कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी। उसके मेंबर कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर जो चेयरमैन की तरह काम करेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो आपके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। सिर्फ यही होंगे और सीजेआई को यहाँ पे हटा दिया गया है इस कमेटी से। सो वी विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट दिस बिल, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस बॉडी इलेक्शन कमीशन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस बिल। सो यहाँ पे एक बिल पास होता है दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, ये पूरे बिल का नाम है। ठीक है, अब इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पे? राज्यसभा। यहाँ पे बेसिकली इस पूरे बिल का मेन एम यही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको सिलेक्शन पैनल कमेटी से हटाना है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमिश्नर। मार्च 2023 की अगर हम बात करें, इन द ईयर ऑफ 2023 मार्च, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि जो आपके सिलेक्शन मेंबर होंगे, जो आपके ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है, उनका जो सिलेक्शन होगा वो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें आपके पीएम होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होंगे और सीजेआई होंगे। तो इसको हटाने के लिए, इस जजमेंट को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ये बिल लाया गया है। So first we will discuss about the election commission, then we will discuss the nitty-gritty of this bill. So talking about election commission of India, it is a permanent and independent body formed by Article 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसके पास क्या क्या पावर है कि ये आपके इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा। कहाँ कहाँ पे? पार्लियामेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगा, देन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो दीज आर द offices for which election is being conducted by the Election Commission of India. Constitution ने कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं बताया है कि कैसे इनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, लेकिन आपका जो आर्टिकल 324(2) है वो ये कहता है कि जो आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या अदर इलेक्शन कमीशंस का, दे शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लॉ फ्रेम नहीं किया गया है। प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस वो अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, यहाँ पे इनकी टेन्योर की बात करें, सो दे हैव अ टेन्योर ऑफ 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। और इनका जो स्टेटस होता है या जो सैलरी होती है, पर्क्स होती है, दैट इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है इनका पावर, स्टेटस और सैलरी। Constitution has not
barred or debarred the retiring election commissioner from any further appointment by the government. Okay, you have to remember this point in mind. जब से आपका बना है since the inception until 15th अक्टूबर 1989, जब से आपका ये बॉडी बना है तब से लेके 15th अक्टूबर 1989 इलेक्शन कमीशन जो था वो आपका एक सिंगल मेंबर बॉडी था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1989 प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया दो और कमिश्नर्स को, मतलब पहले सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे, फिर दो और कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया अलोंग विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसके थ्रू इनका जो मतलब वर्क बर्डन था वो कम करने के लिए आपका बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द अकाउंट, क्योंकि आपका उसी टाइम पे 21 से 18 साल आयु की गई थी वोट की, वोट देने की आयु मिनिमम 18 ईयर्स हुई थी, तो ऑब्वियसली वर्कलोड बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे दो कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। और साथ में ये कहा गया कि अगर कोई ओपिनियन में डिफरेंस आता है तो जो भी मेजोरिटी से डिसाइड होगा, वट एवर विल बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हो मतलब सीईसी प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनकी मेजोरिटी में दो लोग जिसके फेवर में चले जाएंगे वो आपका रहेगा, ठीक है, तो वो डिसीजन आपका लिया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस होल बॉडी और हिस्ट्री ऑफ दिस होल आर्टिकल। नाउ व्हाट इज द की हाईलाइट ऑफ दिस बिल? सबसे पहले इस पूरे बॉडी से सीजेआई को हटा दिया गया, जो आपका बोला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अपॉइंटमेंट जो होगा वो आपका 3 मेंबर बॉडी से होगा, कमिटी से होगा। इट विल बी कंप्राइज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा एंड सीजेआई। तो यहाँ पे सीजेआई को हटा दिया गया और इसकी जगह किसको लाया गया है? एक मेंबर जो कि आपके नॉमिनेट कैबिनेट मेंबर, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट दिस होल आर्टिकल और द इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ दिस आर्टिकल। Moving further toward our next important article, that is from the text and context section. So here we have article on India and the Northern Sea routes. क्या significance है आर्कटिक रीजन का फॉर इंडियाज इंटरेस्ट? क्यों इंडिया मुरमांस कार्गो ट्रैफिक में इतना इन्वॉल्व है और क्या है ये आर्कटिक रीजन का, व्हाट इज एनएसआर, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस पूरे आर्टिकल में। So just remember about this port Murmansk. It is basically called the capital of Arctic region and it is the beginning point of the North Sea route. ये चार्ट जो है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो नॉर्थ सी रूट का है, यहाँ पे आपको मुरमांस दिख रहा होगा। This is the beginning point of the North Sea route. Okay? और यहाँ पे रिसेंटली इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत देखा गया है और फर्स्ट 7 मंथ में, इन द फर्स्ट 7 मंथ ऑफ 2023, इंडिया गॉट द लायंस शेयर ऑफ 35% ऑफ 8 बिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय द मुरमांस पोर्ट, जो कि आपका मॉस्को के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। इसीलिए इंडिया के लिए ये जो आपका एनएसआर रीजन है, दैट इज द नॉर्दर्न सी रूट रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारे रीजन है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो आर्कटिक रीजन जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनीवन एंड आल्सो फॉर इंडिया। अब आर्कटिक रीजन बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी है क्योंकि ये आपका बेसिकली अबव द आर्कटिक सर्कल है और इसमें आपका आर्कटिक ओशन आता है, नॉर्थ पोल आता है इसके सेंटर पे, और यहाँ पे क्लाइमेट के चलते बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस आ रही हैं। बट इट इज वी कैन से एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज, क्योंकि इसके चलते जो आपकी आर्कटिक सर्कल की आइस थी वो क्लाइमेट चेंज के चलते पिघल रही है। अब इसके चलते एक नया रूट डेवलप हो रहा है जो कि बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उसका कॉस्ट बचाएगा। तो यहाँ पे इसके चलते इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन सब का प्रॉब्लम आ रहा है। और साथ में ये जो रीजन है इट कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट अनएक्सप्लोर्ड प्रोस्पेक्टिव एरिया फॉर हाइड्रोकार्बन रिमेनिंग ऑन द अर्थ, क्योंकि ये बहुत सालों से बर्फ से ढका हुआ है। तो अब इसके अंदर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हो, तो जब ये बर्फ पिघलेगी तो वी कैन से दैट हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा मिलेंगे हमें देखने का। इसमें एक्सपेक्टेशन है, एस्टिमेशन है कि 40% जो आपका करंट ग्लोबल रिजर्व है ऑयल का और गैस का वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ कोल, जिंक एंड सिल्वर इज ऑल्सो प्रेजेंट in this region.
तो जो गवर्नमेंट की आर्कटिक पॉलिसी है 2022 की, इट मेंशन द कंट्रीज अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड इज गाइडेड बाय द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नाउ इंडिया का एंगेजमेंट जो है वो कितना पुराना है आर्कटिक रीजन में, इसकी अगर हम बात करें तो इसका इंडिया का एंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में तब से स्टार्ट हुआ जब से हमने स्वालबर्ड ट्रीटी साइन की है फरवरी 1920 में इन पेरिस। और यहाँ पे इंडिया साइंटिफिक स्टडीज जो है आर्कटिक रीजन में और रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर रहा है। इसमें आपका एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल, मरीन, हाइड्रोलॉजिकल, ग्लेशियोलॉजिकल स्टडीज ये सब कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे स्वालबार्ड एरिया में ही आपका एक हमने स्टेशन स्टैब्लिश किया है, रिसर्च स्टेशन, दैट इज नेम्ड हिमाद्री, ओके, इन 2008। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज हैं जो आपका बेसिकली एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी की तरह काम कर रहे हैं 2014 से 16 तक। और लास्ट ईयर 13 एक्सपेडिशन जो थे हमारे आर्कटिक में, दे वर सक्सेसफुली कंडक्टेड। और मई 2013 में इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है आर्कटिक काउंसिल का, along with the 5 other members which include China. Then there is a North Sea route which is the shortest shipping route of the freight transportation between Europe and Asia Pacific region, and that is the reason why all these countries are interested कि जब भी आपकी बर्फ पिघलेगी तब एक रूट खुलेगा जो कि आपका बहुत शॉर्ट रूट होगा और इसके थ्रू आपका बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। Now this route begins the boundary of the Bering Sea, the Kara Strait and ends at the Bering Strait. Okay? और यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आपका जो डिस्टेंस है ये आपका जो NSR के थ्रू होगा, मतलब नॉर्थर्न सी रूट के थ्रू होगा, it can be as high as 50% compared to the currently used shipping lanes via the Suez और Panama. इससे भी कम टाइम हमें लगेगा और बहुत जल्दी हम एशिया पैसिफिक का और यूरोप कंट्रीज का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अब ऐसा कहा गया है इस रूट को विजिबल करने के लिए रशिया इज आल्सो वर्किंग, और रशिया के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपका न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर फ्लीट। रशिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर फ्लीट अकॉर्डिंग टू द रॉसएटम स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, एंड मे बी रशिया इज यूजिंग दैट आल्सो। तो यहाँ पे ये जो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर फ्लीट है दैट इज लेनिन, इट वाज डेवलप्ड इन 1959 और ये शायद ऑपरेशन में भी है और यहाँ पे एनएसआर डेवलपमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। And on a similar note, we will see that India will also participate in the NSR development और यहाँ पे इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। So North Sea route is a key focus for India as it offers the shortest shipping route between Europe and Asia Pacific. So we will see what will happen, कब यहाँ पे आइस पिघलेगी और कब हम इसको यूज करेंगे। Moving further toward our next important article that is coming in from the World Affair newspaper, and here we will discuss about a very important news that is with regard to the nuclear power plant. So here Japan releases water from Fukushima plant. यहाँ पे बेसिकली जापान जो अपना वेस्ट वाटर है फ्रॉम द क्रिपल्ड फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट उसको पैसिफिक ओशन में छोड़ रही है, और इसके चलते चाइना को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि चाइना को लग रहा है इट विल ड्रास्टिकली अफेक्ट द सी एंड ऑल्सो द सी फूड्स। तो इसीलिए चाइना ने क्या किया है, चाइना ने बोला है कि ये पूरा ओशन जो है उसको कंटामिनेट करेगा और साथ में इन्होंने बैन कर दिया है जितने भी आपके जापानीज सी फूड इम्पोर्ट हैं उनको बैन कर दिया है। और इधर इन्होंने आईएईए में भी आपका अर्जी डाली है कि आईएईए को भी इस पे काम करना चाहिए। So we will discuss little bit about IAEA, then we will wind up our session. So what is IAEA, because it is very important organization. IAEA, that is also called Atoms for Peace. Okay, this organization was established in the year of 1957 within the UN family, and it reports to both the UN General Assembly and the UNSC. इन दोनों को आपका ये रिपोर्ट करता है, UNSC एंड UN
GA को हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वियना, Austria. Okay, what is the function? It works with its member state and multiple partner worldwide to promote safe, secure and peaceful use of nuclear technologies. और साथ में पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी मटेरियल वेपन यहाँ पे इससे मिलिट्री वेपन यूज नहीं किया जाएगा और सही तरीके से हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करें. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ IAEA. सो वी कैन से इट इज अ वॉच डॉग फॉर न्यूक्लियर energy. Now talking about the program, so the first program which it has taken is PACT, that is the Program for Action of Cancer Therapy. Then there is Human Health Program, Water Availability Enhancement Project, and also the International Project on Innovation or Innovative Nuclear Reactor and Fuel Cycle. These are various programs taken by IAEA. So this is all for today. I hope you liked this session and you got to know about a lot of things. Thank you for listening. Thank you for being there.